Good evening and thank you for coming. Shekhar Pathak is. It's very hard for me to introduce a man I've known for 40 years and who is one of the Indian scholars and activists I admire most. He is a living encyclopedia of the Himalaya. He has traversed all its valleys, most of its passes. It was said of Salim Ali that he knew every bird in India. I can say of Shekhar Pathak that every human being in Uttarakhand knows him, and some birds and animals too. And there are people in this room who will, Sanjeev Chopra here, who will testify to that. He writes and works mostly in Hindi. For many years, he's edited an annual called Pahar, which is like the Bangalore Literature Festival. Citizens driven, citizens motivated with him as the anchor, is produced 20 volume वाले? 22. 21 extraordinary volumes on the history, culture, ecology, politics of the Himalaya, literature, folklore. He's written many books himself. I'll just single out 3. One was awarded the Kamala Devi Chattopadhyay Book Prize for non-fiction. This year, the award ceremony was earlier this evening at the BLF. It was written in Hindi with the wonderfully evocative title Hari Bhari Umeed. It's a majestic people's history of the Chipko movement, and it's appeared in English as the Chipko movement, the people's history. The other landmark book he wrote, which is his PhD thesis, has appeared only in Hindi. It's a history of movements against forced labor in the Himalaya. And the third book, which may be his most important, though it's hard to say because of the kind of work he's done, is an extraordinary account of an explorer called Nain Singh Rawat, who was born in the early 1900s and was sent by the British to explore the routes to Tibet since white people were not allowed. And it's a narration of this man born in an upper Himalayan family and the work he did. That book has appeared in a smaller version from the National Book Trust. It's called Pandito Ka Pandit. It's also appeared in a larger version called Asia Ke Peeth Par. And we in Bangalore are working on bringing it out in English. By we in Bangalore, I say not me, but some worthy citizens of Bangalore are working with Shekhar. It's an extraordinary biography of a remarkable explorer. Shekhar, incidentally, this is the last thing I'll say, the kind of historian he is. This is why I admire him so much, not just as a human being, but as a historian. More than 100 years after Nain Singh died, Shekhar went to his native village, Munsiari, Milam, which is in the upper Himalaya, and he found his diaries, written 100 years ago. Shekhar knows Hindi, Garhwali, Kumauni, but he did not know the dialect in which Nain Singh's diaries were written. Fortunately, his wife Uma Bhatt is a distinguished professor of literature at Kumaon, and that was at home. He had an interpreter, translator, and advisor. And he's going to speak today in Hindi because he's the most wonderful speaker in Hindi. So I would like him to speak in the language. I hope it's okay with everyone because I think the beauty and the poetry of his Hindi cannot be surpassed. Or राम, थैंक यू राम. राम इतना ऊपर चढ़ा देते हैं उसमें गिर पड़ने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ. मेरे को जो टाइटल दिया गया है वो दास्तान हिमालय है. दिस इज़ ऑल्सो द टाइटल ऑफ माई बुक, 2 volume book on Himalayas, different lectures and different articles published in last 40 years. History, to some extent anthropology, folklore, then travel book, 3 smaller biographies, Chandra Singh Garhwali, Rahul Sankarayan, and Sallabh. And 2-3 more pieces, one on language, the other on the very fascinating place known as Kailash Mansarovar, how it attracts people belonging to different religions and they walk together, talk together. This was the collection known as Dastan-e Himalay. So the title
आई वॉज गिवन टू स्पीक टुडे, दास्तान हिमालय। तो मैं ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है, मैं हिमालय की कहानी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप जो लोग यहाँ पर हैं, आपके बिल्कुल बगल में है जिसको कहते हैं हम वेस्टर्न घाट्स। जो लोग वहाँ जाते हैं या जो लोग वहाँ जाएंगे, तो मैं समझूंगा कि आप वहाँ से ही हिमालय को जानना शुरू करेंगे। जिस दिन आप वेस्टर्न घाट्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उसके बाद आप हिमालय में जाने की क्वालिफिकेशन पा जाएंगे। क्योंकि अगर वेस्टर्न घाट की चिंता आप नहीं करेंगे, तो फिर हिमालय की चिंता नहीं हो सकती और हिमालय को समझना भी नहीं हो सकता है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि हिमालय इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, और हमारी पूरी साइकी बनी है कि हम जब उत्तर को देखेंगे तो हिमालय दिखेगा। लेकिन मैं इतने सालों में, बिगड़ते बिगड़ते 40-50 सालों में, अब हिमालय को मैं नॉर्थ में नहीं देखता हूँ इंडिया के, अब मैं उसको एशिया के बीचों बीच देखता हूँ। बिकॉज इट डिसाइड्स द इकोलॉजी ऑफ होल एशिया। 10 बड़ी नदियाँ वहाँ से निकल रही हैं, तकरीबन 7 करोड़ पॉपुलेशन वहाँ रहती है, तकरीबन 70 करोड़ पॉपुलेशन नॉर्दर्न इंडिया की और बर्मा की, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की और नेपाल की और भूटान की, वहाँ के रिसोर्सेज पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है निर्भर है। और वो हिमालय बहुत पुराना नहीं है, उसके मुकाबले हमारे दक्षिण के पहाड़ बहुत बूढ़े हैं, बहुत पुराने हैं। दे आर द मोस्ट एंशियंट माउंटेन्स ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हिमालय तकरीबन 5.5 करोड़ साल पुराना है, और एक समंदर हुआ करता था वहाँ, टेथिस सी, और जब इंडियन प्लेट ऊपर को खिसकना शुरू हुई तो उसने एशियन प्लेट को हिट करना शुरू किया। बट एशिया तो इतना बड़ा था, उसको हिट कर नहीं सकते थे, और बीच में धीरे धीरे टेथिस सी जो है वो धीरे धीरे गुम होता चला गया, और उसकी जगह पर हिमालय आज आ गए, और आज भी हिमालय ऊपर को जा रहे हैं। एक ज़माने में माना जाता था कि एवरेस्ट इज़ 29,028 फीट, अभी वो उसकी ऊंचाई जो है करीबन 15-20 फीट ज़्यादा RGS ने और अमेरिकन ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने मानी है, यानी कि हर साल 3 या 4 सेंटीमीटर ऊपर पहाड़ उठ रहे हैं। अब ये हिमालय है क्या? हमारे आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है, उन्होंने कालिदास को जरूर पढ़ा होगा, अस्तुत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजो। कालिदास शायद पहला कवि था जिसने न सिर्फ हिमालय के सौंदर्य को, हिमालय की ब्यूटी को समझा, बल्कि उसने पहली बार हिमालय की जियोलॉजी को समझा कि हाउ हिमालय कनेक्ट्स द ईस्टर्न ओशियंस विथ वेस्टर्न ओशियंस। अगर आप गूगल अर्थ में देखेंगे हिमालय को, तो दक्षिण पूर्व एशिया से हिमालय उठता उठता चला जाता है, और साउथ ईस्ट एशिया से धीरे 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 नॉर्थ वेस्ट को जाते हुए, और पामीर की गांठ के बाद उसका ईरान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ उसकी टहनियाँ चली जाती हैं। ये ठीक है कि उसकी ऊंचाई घट जाती है। उसको पृथ्वी का मानदंड कहा। अल्लामा इकबाल ने उसको ए फसीले किस्वरे हिंदोस्ता, ये संतरी हमारा, ये पासवा हमारा, ये गीत तो बहुत बार आपने सुना है। तो कोई कवि ऐसा नहीं है इंडियन लैंग्वेजेस का जिसने हिमालय की गाथा न गाई हो। लेकिन इस सब गाथा के बावजूद हिमालय की जो प्रॉब्लम है, मॉडर्न डे प्रॉब्लम है, पिछले 150 साल की, कॉलोनियल पीरियड के आने के बाद की, वह बहुत कठिन है। पिछले 2000 सालों में हिमालय जितना नहीं बदला, उससे बहुत ज़्यादा पिछले 200 सालों में, कॉलोनियल पीरियड में और हमारे अपने ज़माने में, वो बदल गया। जो लैंड एक्ट बने, जो फॉरेस्ट एक्ट बने, जो पहली बार हिल स्टेशन बने, जो पहली बार आपके कैंटोनमेंट्स बने, पहली बार सड़कें गई, मोटर आई। भारत में रेल आने के मात्र 40 साल के भीतर आवर फुट हिल्स वेर कैप्चर्ड बाय द साइट ऑफ ट्रेन्स। देहरादून से लेके टनकपुर तक और उधर जलपाईगुड़ी से लेके आपके अम्बाला तक जो है रेल जो है लगभग 1900 से पहले आ गई, जबकि भारत में रेल 1850 के 53-54 में आ रही। इतनी जल्दी रेल आई, तो क्या कारण था कि इतनी जल्दी रेल आई? रेल के बदले नदियों में भी नेविगेशन हो सकता था, ट्रांसपोर्ट हो सकता था। उसका बड़ा कारण था कि हिमालय के बड़े आकर्षण थे। बड़े आकर्षण रिसोर्सेज थे। दूसरा बड़ा ह्यूमन रिसोर्स था, क्योंकि दे नीडेड ह्यूमन बींग्स फॉर द आर्मी पर्पजेज। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ वॉर हो रहे हैं या वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सैनिक कुमाऊँ गढ़वाल, गोरखा राइफल, डोगरा राइफल, पूरे हिमालयन हाईलैंडर्स जो थे, दे वेर द मोस्ट डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। उसके बाद जंगल थे। रेल के आने के बाद जंगलों का अर्थ बदल गया। मिनरल थे, मेटल थे और तेल भी थे। सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी हमारी आसाम में लगी, वहाँ के पहाड़ों से उसका ताल्लुक है।
ट्रांस हिमालयन ट्रेड एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फेनोमेना था, बिकॉज वो पूरे इंडियन नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट के व्यापारिक रिश्ते को तिब्बत के साथ कायम करता था। तिब्बत में गया हुआ सामान जो है वो सिल्क रोड के साथ पूरा चाइना से लेके यूरोप तक जाता था। तो एक बहुत बड़ा आदान प्रदान हिमालय में था। अब जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि हिमालय एक इस अर्थ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट माउंटेन है क्योंकि वो भारतीय मानसून को तिब्बत में नहीं जाने देता है, वो रोकता है और फिर वो बरस पड़ता है। अगर वो तिब्बत में चला जाए तो तिब्बत में से तो एक ही बार में बहुत बड़ी फ्लडिंग हो जाएगी, क्योंकि लूज मास है और कोल्ड डिजर्ट है। आपने देखा होगा अभी जो लद्दाख में फ्लड आया, कैसे वो फाइनली पाकिस्तान में वो क्लाइमेक्स में पहुंच गया और बहुत बड़ी डैमेज उसने पाकिस्तान को पहुंचाई। हिमालय नॉर्दर्न यानी कि नॉर्थ ऑफ हिमालय की, सेंट्रल एशिया की और तिब्बत की ठंडी हवाओं को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने से रोकता है। ये दूसरा बड़ा इकोलॉजिकल रोल है। लेकिन फिर भी हिमालय वॉल नहीं, दीवार नहीं, उसको लांघा ना जा सके। तो जैसा मैं कह रहा था कि दो पीक्स को जोड़ने के वाला जो बीच का भूगोल है उसमें दर्रा आता है, और जो वो दर्रे होते हैं, पासेस होते हैं, दे कनेक्ट डिफरेंट सिविलाइजेशंस, डिफरेंट सोसाइटीज, कम्युनिटीज, देयर डोमेस्टिक एनिमल्स, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसीलिए पूरा हिमालय जो आपके मेल्टिंग पॉट है एथनिक ग्रुप्स का, अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो अलग अलग समयों पर हिमालय में आए और वो एक दूसरे से शुरू में झगड़े, बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई, मारकाट हुई, लड़ाइयाँ हुई। धीरे धीरे उनको लगा कि एक ही भूगोल में हम रह रहे हैं, तो समझौते हुए, और समझौते के बाद धीरे धीरे एसिमिलेशन की प्रक्रिया हुई। और उसमें ये हुआ कि बहुत सारी भाषाओं की जो तलछट थी, रेजिड्यू थी, दैट रिमेन्ड विद द लैंग्वेजेज ऑफ द मॉडर्न डे हिमालयन इनहेबिटेंट्स। आज कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप ऐसा नहीं है जिसके प्रतिनिधि हिमालय में नहीं है। आज कोई भी ऐसा फोकलोर नहीं है जो उतनी डाइवर्स फोकलोर जो है काराकोरम से लेके बर्मा तक आपको मिल जाएगा। और अगर आप विजुअली भी देखें, गूगल अर्थ में भी देखें कि हिमालय का एक कोना बर्मा में और नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में इतना हरा भरा है, करीबन 80% 85% जो है अंडर ग्रीनरी है। अगर आप वहाँ हेलीकॉप्टर में उड़ें और आपको कोई डराए कि एक्सीडेंट यहाँ होते हैं आर्मी के बहुत, तो आपकी ये कल्पना होती है कि हेलीकॉप्टर जो है पेड़ों के ऊपर आके अटक जाएगा, एक रेखा की तरह आपको ब्रह्मपुत्र दिखती है, अदरवाइज ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। उसी हिमालय के दूसरे कोने में करीबन 2600 किलोमीटर वॉक करने के बाद जब आप जाते हैं, जोग्राफिकल वॉक है, अभी मैं उसको टाराकोट वाली वॉक नहीं कर रहा हूँ, वो लंबी हो जाएगी। जब दूसरे कोने में, नॉर्थ वेस्ट कोने में आप पहुँचते हैं, काराकोरम में, हुंजा में, गिलगिट में, तो वहाँ ओनली 5 to 10% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया इज अंडर लाइफ, अंडर ग्रीनरी। एकदम डिफरेंट सिनारियो है। यानी कि हिमालय के जो दो छोर हैं वो अलग अलग तरीके की इकोलॉजी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दैट मे नॉट बी द केस विथ अरावलीज, दैट मे नॉट बी द केस विथ रॉकीज और एंडीज। ये बहुत कम जाना हुआ पहाड़ है। इतनी चर्चा में जो हिमालय आया है उसकी जियोलॉजी को अभी बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। हमारे एक जियोलॉजिस्ट जिन्होंने हिमालय में काम किया, फिर डेक्कन की जियोलॉजी को जानने के लिए आए, प्रोफेसर बल्दिया, 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है। उन्होंने पहली बार एक कंपैरेटिव जियोलॉजी हम लोगों के सामने रखी कि हाउ जियोलॉजिकली डिफरेंट साउथ इंडिया, डेक्कन फ्रॉम द हिमालय। और बहुत सारे लोग, हम मजाक में कहते हैं कि हिमालय एक छोकरा पहाड़ है, नया नया है और बदतमीजियाँ करता है। इसलिए करता है कि उसके पेट के भीतर बहुत एनर्जी एक्युमुलेट हो रही है। बहुत बार वो अर्थक्वेक्स को जन्म देता है, और 8 रेक्टर स्केल प्लस के अर्थक्वेक हिमालय में आए और पूरी ज्योग्राफी चेंज होगी। इफ़ यू गो थ्रू द रिपोर्ट डन बाय ओल्डहम, हु वाज द जियोलॉजिस्ट विद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने आसाम के 1896 के भूकंप का जब वर्णन किया है तो उसमें एक वाक्य है, माउंटेन्स मूव्ड। वो आप बिलीव नहीं करोगे कि माउंटेन्स कैसे मूव करेंगे, वाकई माउंटेन मूव करके, और जो 200-200 फीट ऊंचे पहाड़, वो पेड़ हैं, वो पूरे के पूरे डेब्रिस के अंतर्गत आ गए। ब्रह्मपुत्र में लेक्स बने, देन लेक्स बर्स्ट हुए, वो इतना मलबा लाए कि 200-200, 250 फीट ऊंचे पेड़ों के ऊपर से मलबा निकल गया। और तकरीबन आधी शताब्दी के बाद वी हैड अनदर अर्थक्वेक इन आसाम इन 1950, और उस फिर लेक बनी, फिर बर्स्ट हुई, और इस बार इतनी फोर्सफुली नदी आई ब्रह्मपुत्र, उसने पुरानी सिल्ट को बहा दिया और वो पेड़ कंकाल की तरह खड़े हो गए। यानी कि 50 साल पहले जो पेड़ दब गए थे उनको फिर उसने दिखा दिया। तो व्हाट काइंड ऑफ, कैसा कैसा कर सकता है हिमालय, वो आप अर्थक्वेक से समझ सकते हैं, लैंडस्लाइड से समझ सकते हैं।
पैराचू नदी के बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना है? पैराचू इज ए वेरी लिटिल रिवर विच ओरिजिनेट समवेयर बिटवीन तिब्बतन एंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर। वो हिमाचल में बहती है, फिर उसका मन नहीं लगता है, मुझे पता नहीं है कि कारण क्या है उसका, फिर वो चली जाती है तिब्बत की तरफ, और तिब्बत में फिर उसका मन नहीं लगता है तो इट कम्स बैक टू कॉन्फ्रेंस विथ स्पीति रिवर विच फाइनली मर्जेज विथ सतलज रिवर। तो कहानी ये हुई कि उसका जो तिब्बतन पार्ट था वहाँ एक लैंडस्लाइड आया और एक आर्टिफिशियल लेक बन गई। वी डोंट हैव एनी एग्रीमेंट विथ चाइना रिगार्डिंग रिवर्स, वी हैव एग्रीमेंट विथ पाकिस्तान, इंडस, हमारा कोशी का एग्रीमेंट नेपाल के साथ है, हमारा बांग्लादेश के साथ फरक्का है, भूटान के साथ है, तिब्बत के साथ नहीं है। और तिब्बत से हमारी 4 माइटी रिवर्स आती हैं, इंडस, सतलज, कर्णाली, भोटकोसी और फाइनली सबसे बड़ी सांगपो, दैट इज ब्रह्मपुत्र। ये सब की सब नदियाँ कैलाश मानसरोवर के चारों तरफ से आती हैं, और एवरेस्ट के चारों तरफ का पानी भी फाइनली कम्स डाउन टू कॉन्फ्रेंस विद गंगा। अब वहाँ वो लेक बनी और लेक बर्स्ट हुई तो फ्लड कहाँ आया? रामपुर, बुशहर और हिमाचल प्रदेश में 2 साल लगातार आया। तो हिमालय का जो कनेक्शन है उसको समझने की बात है कि वॉट एवर वी डू इन हिमालय, the consequences will be faced not only by the Himalayan communities but also the whole northern India will experience those tragedies or experiences। और जब जब भी फ्लड आया उसकी शुरुआत हिमालय में होती है, उसके परिणाम सबसे ज़्यादा नीचे। और एक ज़माने में जो नेचुरल फ्लड आता था उसका इंतज़ार होता था। अभी मैं बिहार से आ रहा हूँ 4-5 दिन रह के, वो कहते थे कि वी वेर ऑलवेज वेटिंग फॉर फ्लड। फ्लड वॉज नॉट फ्लड किलर फ्लड, फ्लड वॉज एक्चुअली an annual process of coming down जो एक fertile silt soil, not silt, soil, fertile soil which comes from the mountains and just spread in the Indo-Gangetic plain, which gives every year a new kind of जो फसल है उसको एक नया महत्व दे देती है। फर्टिलाइजर केमिकल्स हमारे यहाँ यूज नहीं होते थे, काउडंग इस्तेमाल होती थी, जंगल से लाए हुए पत्ते इस्तेमाल होते थे। बाकी जो हर साल फ्लडिंग होती थी उसके साथ जो मिनरल्स आते थे, जो न्यूट्रिएंट्स आते थे मींट फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, वो पूरे उत्तरी भारत में चले जाते थे। ऑल द हिस्ट्री ऑफ दयारा लैंड से अलोंग गंगा, कि गंगा एक तरफ बाएं चली जाती, पहाड़ों में तो पहाड़ नदी को नियंत्रित करता है, जैसे ही द रिवर्स कम टू द प्लेन्स वो मतवाली हो जाती हैं और जहाँ को मना है वहाँ को चली जाती हैं बरसात में। तो इस मियंडरिंग के कारण जो है दियारा लैंड बनती है। तो दियारा लैंड में ये फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि सबसे ज़्यादा तरबूज, खरबूज, सीजनल फसल उसी में लगती है उत्तरी भारत में। तो ये जो कनेक्शन था ये हमारे डेवलपमेंटल मॉडल से पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। एक बात जैसे मैं कहता हूँ, हमारे एक कवि ने भी कही है, आदमी सोचता है कि हमने हिमालय को जान लिया है और अब हम उसमें जो भी करेंगे, बांध बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, 4 धाम सड़कें बनाएंगे, जहाँ बर्फ़ 6 महीने दबी रहती है वहाँ भी आप 12 महीने गाड़ी ले जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद, अपने साइंटिफिक अचीवमेंट्स के बावजूद इतना शक्तिशाली नहीं हुआ है कि वो माउंटेन्स पर और नेचर पर नियंत्रण कर सके। सुनामी एक बड़ा उदाहरण है। साउथ ईस्ट एशिया से सुनामी आया और जंजीवार तक गया, और जंजीवार में भी 5 लोगों की डेथ हुई और थाउजेंड्स तो मरे ही उसमें। लेकिन जो उसमें बचे वो कौन थे? वो सिर्फ ओंगीज और ग्रेट अंडमानीज थे, जिनको पता था कि वो बहुत बार आती रहती है, और वो ठीक जगह पर चले गए और ये पूरा का पूरा जो तूफान था वो निकल गया और वो लोग बचे रहे। लेकिन हम विशाखापट्टनम में लोगों को नहीं बचा सके, मद्रास में लोगों को नहीं बचा सके, कराची में नहीं बचा सके। तो ये जो नेचर को समझने का है वो हिमालय हमें बताता है कि अपने औकात में रहो और एक ढंग से विकास करो। सड़क बनानी है तो ढंग से बनाओ, जाओ, लेकिन इस तरीके से मत काटो मुझे कि मैं दोबारा टूटने के लिए अभिशप्त हो जाऊं। मैं नया हूं, अभी मैं सेटल नहीं हुआ हूं। मेरी अभी बहुत जगह जो सॉइल है वो जियोलॉजी यानी कि वो रॉक नहीं बनी है, वो अभी सेडिमेंट्री रॉक बन रही है बड़ी मुश्किल से, उसको अभी डोलोमाइट बनना है रुकने के लिए वगैरह वगैरह। बहुत जगह बन गई है। तो हिमालय बार बार कहता है, लेकिन आप हिमालय में घुसपैठ करना चाहते हैं। जो फिलोसॉफिकल बात है वो ये है, हम नदी नहीं बना सकते, हम पहाड़ नहीं बना सकते, तो हमें इतना बड़ा हक नहीं है कि हम पहाड़ को नष्ट करें, हम किसी नदी को नष्ट करें। हम क्या बनाते हैं? पिंजड़ा। क्या हम घोंसला बना सकते हैं? क्या हम नेस्ट बना सकते हैं? नहीं, किसी कंपनी ने अभी कोई नेस्ट बना के नहीं दिया है। पिंजड़ा बनाते हैं ताकि वो गुलाम हो जाए
या हम जू बनाते हैं कि चिड़िया पक्षी जानवर वहाँ आ जाएं, या हम कभी कभी नेशनल पार्क्स बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं ताकि एक बाढ़ लग जाए और वहाँ के वीआईपी जो हैं बाघ हो जाएं, और जो बीपीएल बाघ हैं जिनको आगे हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, यानी कि आउटसाइड ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट जो बाघ हैं बेचारे, जिनको बीपीएल बाघ हम कहने लगे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन बाघ, उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। अब हमारे यहाँ हिमालय में मुश्किल ये हो रही है कि जंगलों से टाइगर यानी कि लेपर्ड जो हैं, जो जिम कॉर्बेट के ज़माने में 100 साल पहले उतना नहीं आते थे, वो ज़्यादा आने लग गए हैं। बकरी, बच्चियाँ, कुत्ते इनको ले जाने लगे हैं, कभी कभी बच्चों पर हमला कर देते हैं। अब जैसा हम सवेरे बात कर रहे थे कि बाघ से हम कभी नहीं कह सकते हैं कि हे बाघ तुम शाकाहारी हो जाओ, तुम वेजिटेरियन हो जाओ। मान लिया हो भी जाए तो बहुत शताब्दियाँ लगेंगी ना, एक बायोलॉजिकल चेंज में, फूड हैबिट के चेंज में समय लगेगी। अब बाघ का जो जंगल में जो फूड था वो हमने खा दिया, जो उसके लिए हिरन बने थे, जो उसके लिए एंटीलोप बने थे वो हमने खा दिए, जो खरगोश उसके लिए नेचर ने बनाए थे वो हमने खा दिए। इसलिए ये बड़ी चुनौती है कैसे हम पूरे हिमालय को देखें, क्योंकि हिमालय से अगर इकोलॉजी को समझने की कोई दिशा आती है वो पूरे हमारे कॉन्टिनेंट को, हमारे सब कॉन्टिनेंट को और पूरी दुनिया को उसके लिए आएंगे। अभी मैं सवेरे जिक्र कर रहा था और एक दो बड़े मशहूर पेपर आए, मुझे शुरू में उस पर विश्वास नहीं हुआ, और साइंस में अनेक बार शक भी, हम सोशल साइंस वाले शक भी करते हैं कि साइंटिस्ट बड़बोलापन तो नहीं कर रहा है, या कोई एक पर्टिकुलर छोटी स्टडी को पूरी दुनिया पर तो नहीं थोप रहा है, आदि आदि। तो एक जो स्टडी आई कि हाउ द डिस्ट्रक्शन ऑफ अमेजन फॉरेस्ट इम्पैक्टिंग द बिहेवियर ऑफ इंडियन मानसून, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ शुरू में, लेकिन वाकई वो बात सच निकली। दूसरी एक स्टडी आई कि द कार्बन dust or the black carbon created by north of Indian subcontinent, how it is going, flying north towards north of Iceland, and how it is reaching there and increasing the speed of melting of the ice north of Iceland. तो इससे पता चला कि दुनिया बहुत छोटी है। अगर दुनिया के किसी भी कोने में हम कोई भी गड़बड़ी करेंगे, उसके परिणाम पूरी दुनिया को देखने पड़ेंगे, भुगतने पड़ेंगे। और हिमालय हमारे पास प्रत्यक्ष एक उदाहरण है, जिससे 10 नदियाँ निकलती हैं चारों दिशाओं में, और जो 3 बड़ी नदियाँ इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ओर आती हैं, इंडस सिस्टम, गंगा सिस्टम और ब्रह्मपुत्र सिस्टम, आपको आश्चर्य होगा, दे कवर द टोटल 40+% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। और अगर वाटर बजट में उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो दे कंट्रीब्यूट, गंगा सिस्टम, इंडस सिस्टम एंड Brahmaputra system, that is Sangpo in Tibet, they contribute 63% to the water budget of India. The rest 37 is contributed by all other rivers of Indian subcontinent. This is a unique kind of data. मैं शुरू में इस पर मैं शक कर रहा था, लेकिन बाद में मैंने बहुत सारे वैज्ञानिकों से इस पर डिस्कशन किया, इन्होंने कहा ये सही है। यानी कि द रिवर्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज, हाउ दे कनेक्ट Tibet with Himalayan nations or Indian provinces or states to Indo-Gangetic plains, the states located in Indo-Gangetic plains, and the nations in Indo-Gangetic plain like Pakistan and Bangladesh, and finally how they are connecting western Tibet or the Himalayas with Arabian Sea and Bay of Bengal. आज अगर हिमालय के मिनरल्स की स्टडी करनी है, जो मूर आइलैंड वहाँ बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, उसके सिल्ट से आप पता कर सकते हैं कि विच आर द मेजर और माइनर मेटल्स और मिनरल्स ऑफ आसाम ऑफ हिमालयाज। तो हिमालय की ये महत्ता आज हमें समझनी चाहिए, और इसमें हिमालय की जो जियोलॉजी है वहाँ से हमें शुरू करना चाहिए, ज्योग्राफी से शुरू करना चाहिए, रिसोर्सेज में आना चाहिए। अब समय हमारे पास शायद कम है, हाँ मैं एक बात पर करके अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हिमालय की जो एक सेंट्रल रिसोर्स है वो फॉरेस्ट है, और वो इसलिए है क्योंकि फॉरेस्ट जो हैं वो कार्बन सिंक, तो अभी क्लाइमेट चेंज के ज़माने की बात है, इसलिए उसको अभी ज़्यादा उसको महत्ता मिली, लेकिन एक संसाधन के रूप में कि विदाउट फॉरेस्ट यू कैन थिंक अबाउट एग्रीकल्चर, विदाउट फॉरेस्ट यू कैन थिंक अबाउट कॉटेज इंडस्ट्रीज, विदाउट फॉरेस्ट यू कैन थिंक अबाउट वाटर सिस्टम्स। मैं तो कभी कभी जंगलों को ग्रीन ग्लेशियर कहता हूँ, वो जो हिमालय में है वो वाइट ग्लेशियर है, ये ग्रीन ग्लेशियर है, क्योंकि ये इतना पानी होल्ड करते हैं और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं जितना कोई और सिस्टम नहीं करता है, और हमारा मनुष्य का बनाया हुआ सिस्टम तो कर भी नहीं सकता है। उसके बाद ये हमारे कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं, हमारे फ्यूल फॉडर सब इससे आता है, पूरा हमारा मेडिसिनल सिस्टम जो है जंगल से मिलने वाली जड़ी बूटियों पर निर्भर है, हमारे देवताओं के वास वहाँ,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं फोक गॉड्स के बारे में कर रहा हूँ, जो बड़े ह्यूमन गॉड्स हैं, यानी कि वो मनुष्य की तरह हैं, हमारी ही तरह हैं वो, और वो हजारों में हैं, उनका कैटलॉगिंग नहीं हुई है हिमालय के देवताओं की। हमारे जो भी लोग अभी वहाँ से अमेरिका से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बेंगलोर से अपने गांव में पूजा करने आते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने नहीं आते, वो अपने फोक गॉड की पूजा करने आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से उनको डर नहीं लगता है, अपने फोक गॉड से उनको डर लगता है। और वो IIT का पढ़ा होता है, IIM का पढ़ा होता है, लेकिन एनुअल पूजा के लिए अपने घर में पहुंचता है। पिछली बार हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो सिलिकॉन वैली से आया हुआ था, उनसे कहा नहीं, देवता तो गाँव में ही है, उसको शिफ्ट भी नहीं कर सकते, अपने साथ ले भी नहीं जा सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश की तो मूर्ति और कैलेंडर ले जा सकते हैं, और आजकल तो सरकार भी मदद करती है उसमें। तो जो डाइवर्सिटी है हिमालय की, वो सिर्फ नेचुरल और जियोलॉजिकल नहीं है, वो सोशल और कल्चरल भी है। 600 भाषाएं वहाँ विराजती। नागालैंड को देखिए, 16 कम्युनिटी हैं, 14 भाषाएं हैं, लेकिन कोई एक दूसरे की भाषा को नहीं जानता है, सभी नागा हैं, लेकिन अलग अलग नागा है। एक नागामीज लैंग्वेज उन्होंने इन्वेंट की है, विच कैन कनेक्ट देम, अदरवाइज एवरीवन हैज देयर ओन लैंग्वेज। ये हिमालय की डाइवर्सिटी है, और इस डाइवर्सिटी की सबसे बड़ी विशेषता है इसका नेचुरल डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हमारी सरकार नहीं समझती है। वही डिसेंट्रलाइजेशन हमें डेवलपमेंटल मॉडल में चाहिए, सड़क में चाहिए, हमें डैम में चाहिए, हमें शिक्षा में चाहिए, हमें हॉस्पिटल में चाहिए, पूरे डेवलपमेंटल बोर्ड में चाहिए। आप इंडो गंजेटिक प्लेन के सिस्टम को, या गुजरात के सिस्टम को, या यहाँ तो फिर भी पहाड़ी इलाका है, उसको आप हिमालय पर थोप देंगे तो ये एक तरीके से वो सस्टेन नहीं होगा। बस इसके बाद मैं चुप हो जाता हूँ ताकि शांति हो।